एक्सपीरियंस संजय दत्त के साथ का काम करने में? मतलब जैसे मैंने कहा कि आई डिडंट थिंक दैट आई वुड एवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद संजू सर एंड टू हैव ऐसी टाइप की जो कहानी है, एक फादर और डॉटर की कहानी, एक तो बहुत एनीवे स्पेशल होता है द रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड डॉटर, मदर एंड डॉटर, दीज आर वेरी वेरी स्पेशल रिलेशनशिप्स। अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो एक करीबी होती है बिटवीन फादर्स एंड डॉटर्स, I think the way that this has been shown in the film is very very sweet, and just to live that, जब आप film करते हैं, you actually live that, for that time. So it was very special to have Sanju sir, and he's also he's so amazing to work with, just because apart from the fact वो बहुत हंसाते हैं। एक तो एक शॉट में हम लोग रो रहे हैं, उसके एक सेकंड पहले वो आपको हंसाएंगे, बट he's very natural and it's so amazing to react to him, because वो कभी-कभी कुछ और कर देते हैं and you naturally react to him, so it's really been amazing. Ma'am, it's a comeback movie of Sanjay sir, so how you are excited for it? I'm excited just like y'all are excited. I think everybody is excited, and the same way I'm also a very big fan of his, and I'm also really excited. And I've seen how he has worked on this film. Like he got hurt, एक सेकंड के लिए भी वो रुके नहीं। एक्शन सीक्वेंस के समय उनको चोट लगी, इमीडिएटली उठ के उन्होंने take दिया. So I've seen how he has worked, and I'm dying to now watch him on screen, even though I have seen him like this. Most of the scenes are from Agra only. So Taj how Mahal you have enjoyed the symbols of love shooting and Taj Mahal, वो कैसा? We're going to see any love in the scenes, something? See, I don't want to tell you anything about this story, but there is a reason that they have set it in Agra, because Agra is the city of love, and it's such a, it is a, it is a metaphor for love, but at the same time what happens in this film is kind of diametrically opposite to that. So I think that is why Umang sir chose the film. Also Agra में एक flavor है, बहुत गलियाँ और बहुत सारे plastic bags. I wish नहीं होते लेकिन हैं, but I'm just kidding. But anyway, so Agra has a lot of flavor. उनकी एक वाइब है और बहुत सुंदर भी है, स्पेशली दैट ताज एरिया, तो इट्स दैट। ओके अदिति जी, क्योंकि पद्मावती की अगर मैं बात करूँ, कई सारे प्रॉब्लम के बाद अब हमने जो सुना है कि कंटिन्यू शूटिंग चल रही है, तो आप बताइए कि ये कब तक आ जाएगी पद्मावती? नवंबर दिसंबर? एक्चुअली आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपके अनुसार? नहीं, मेरे अनुसार मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ। नो आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। आई थिंक देयर आर पीपल who are sort of who are handling this, and they are very good at what they're doing. I'm an actor and I'm just so blessed to be working with them that this is not a question I can. सच्ची में मैं कैसे आंसर कर सकती हूँ question? I just hope and pray that no difficulties are faced, because I really believe that somebody like Sanjay sir is somebody we should, Sanjay Leela Bhansali sir, since there are two Sanjay sirs I'm talking about, he's somebody that we should be proud of, और उनकी आवाज़ हमें कर्ब नहीं करनी चाहिए. He's somebody we should, like, he creates cinematic history, and we should really be proud of him, and we should give him a platform to make his films in peace, because he makes beautiful films. Thank you so much. भूमि फिल्म की शूटिंग अरुण नीचे बूम कर क्या कर रहा हो? खत्म हो गई है। ये एक छोटा सा गेट टुगेदर है, जिसे मैं पार्टी का नाम नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि पार्टी में थोड़ी अय्याशी आ जाती है, तो ये पार्टी नहीं है, ये सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, सेलिब्रेशन ऑफ फ्रेंडशिप, सेलिब्रेशन ऑफ कंप्लीटिंग द फिल्म। बहुत सारी बातें हैं। संजय और हम 20 साल पहले एक फिल्म में काम कर चुके हैं, दिलीप कल्याणी जी के, जो मनमोहन देसाई जी की चीफ असिस्टेंट है, इंसाफ अपने लहू से, और उसमें हमने भाइयों का रोल अदा किया और इसमें दोस्तों का रोल अदा किया। और मुझे ऐसा लगा कि एक मुद्दत के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में वापस आए हैं, और बड़े संघर्ष के बाद और कई मुश्किलात के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम सबको उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मैं उनके करीब रहा हूँ, इसलिए ये न्योता जो है उसके एवज़ में और फिल्म के एवज़ में फिल्म कंप्लीट हुई, और बड़े खुले दिल से हम सब ने उनका आगमन किया है फिल्म इंडस्ट्री में। और इस फिल्म में जिसके ज़रिए उनकी वापसी हो रही है, भूषण कुमार जी की फिल्म है, उमंग कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं, संदीप सिंह इसके प्रोड्यूसर हैं, और मेरी भी इसमें एक अहम भूमिका है। कुल मिला के एक परिवार सा हो गया, और मुझे ऐसा लगा कि जब परिवार जब साथ में मिलते हैं तो थोड़ा बहुत जश्न भी हो जाता है, तो उसी के मुताबिक ये जश्न है। आपके किरदार के बारे में कुछ अगर थोड़ा बहुत अगर आप बताएं, क्योंकि संजय दत्त हमने सुना है, संजय दत्त, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो मौका है ना, ये सिर्फ दोस्ती निभाने का है। मैं किरदार के बारे में फिर कभी बात कर लूँगा, अभी कर भी दूँगा। मैं एक टूरिस्ट गाइड प्ले करता हूँ, जो ताज में एक टूरिस्ट है, और
संजय की एक दुकान होती है जूतों की, और हम दोनों दोस्त हैं और साथ में ज़िंदगी गुजर रही होती है, और फिर कुछ ऐसा होता है कि फिर सबकी ज़िंदगी लग जाती है। ये मूवी का प्लॉट है, और इसके बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी ना मौका है, ना वक्त है, और ना ये दस्तूर है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं और साथ मिलने के लिए और गले मिलने के लिए, और मैंने कहा है जस्ट वेलकमिंग हिम बैक टू द फोल्ड, बैक टू द फिल्म इंडस्ट्री। वी ऑल वेरी एक्साइटेड टू सी हिम वंस अगेन ऑन द बिग स्क्रीन, एंड ही इज़ कमिंग बैक जस्ट विद द राइट रोल। और एक उनको नज़दीक से जानने का मौका मिला। ही इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर एंड इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर, और जिस तरह की भूमिका उन्होंने निभाई है, people are going to love him in that role, और उनका रोल उन्होंने निभाया है इसमें, and people are going to see just a very different side of संजय दत्त in this movie। तो जिस तरह से उन्होंने नाम में, वास्तव में और मुन्ना भाई में लोगों को चौंका दिया था, उसी तरह भूमि में भी मैं आपको वादा करता हूँ कि with his performance he is going to take everyone